जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो 31 एडवोकेट के नाम एलिगेशन के लिए भेजे थे, उस विषय पर अपनी आवाज को ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद और गवर्नमेंट को भेजने का निर्णय लिया था। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे के संदर्भ में सबसे पहले हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को 7 जून 2020 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को हमने ईमेल के माध्यम से उनसे अपॉइंटमेंट चाहा था कि वो इस विषय पर हमें मिलने के लिए समय दें, लेकिन उन्होंने हमें कोई समय नहीं दिया। उसके बाद में 18 जून 2020 को हम लोगों ने एक रिमाइंडर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भेजा था कि हमने जो आपको रिप्रेजेंटेशन इस बात के लिए भेजा है कि हमें मिलने के लिए समय दिया जाए, उस पर आपने कोई निर्णय नहीं लिया, तो हमें उस पर निर्णय लेकर सूचित करें। लेकिन हमारे 18 जून 2020 के इस रिमाइंडर पर भी चीफ जस्टिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। साथियों, उसके बाद में 5 अगस्त 2020 को हम लोगों ने स्टेट की मीटिंग बुलाई थी इलाहाबाद में, और उस स्टेट की मीटिंग में हम लोगों ने फैसला किया था कि हम अपने डिमांड लेटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ईमेल के माध्यम से भेज दें। तो हम लोगों ने अपने डिमांड लेटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ईमेल के माध्यम से भेजा था। साथियों, वो डिमांड लेटर क्या है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि हम लोगों ने किस संवैधानिक दायरे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को वो लेटर लिखा था। दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑनरेबल सर, नमस्कार। With due respect, we want to raise our begon before your honorable sir. Honorable sir, Dr. Ambedkar Rashtriya Adhivakta Sangh is advocates organization representing SC, ST, OBC and minority advocates practicing in state of Uttar Pradesh, including High Court of Judicature at Allahabad. Honorable sir, you are very well aware about the fact of population of state of UP is more than 85% belonging to backward classes. Our Honorable High Court is also state as per Article 12 of the Constitution of India and public institution, but the representation of backward classes is very little in this public institution. Honorable sir, as per the Honorable High Court website, the sanctioned strength of the Honorable judges are 160 and present working strength is about 102, out of which the total strength of the judges belonging to backward classes is very, very poor. Honorable sir, we came to know through social media recently in the month of May 2020, our Honorable High Court recommended about 30 name of advocates through collegium for elevation of High Court judge, but in that recommendation, name of advocate belonging to backward classes, SC, OBC are not list 0, are at least 0, which is so much disgraceful for us and for the large section of the state population. Due to non-representation of the large population of backward classes is being agreed under Article 14 of the Constitution of India. Honorable sir, in the present scenario, it is to be stated that after independence of 70 years, no need to reservation to the backward classes due to much development of backward classes, while on the other hand to say non-availability of eligible candidates belonging to the backward classes for recommendation is itself contradictory, which is not true. And last, Honorable sir, kindly to take notice seriously upon this fact
that in our Honorable High Court, eligible candidates belonging to backward classes are also available, who may be searched by your reliable sources, and their name may also be considered for elevating as High Court judge. We hope and faith your Honorable Sir will consider your grievance and do needful. Thanking you. मेरे साथियों, ये डिमांड लेटर हम लोगों ने ऑनरेबल चीफ को भेजा और ऑनरेबल चीफ साहब को भेजने के बाद में हम लोगों ने अगला कदम उठाया। मैं उस अगले कदम की जानकारी के लिए आप सबके बीच में हूँ। उसके बाद में हमने पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जो हमारे 85 विधायक हैं, खासतौर से शेड्यूल कास्ट के, और हमारे जो सांसद लोग हैं SC के खासतौर से और अदर बैकवर्ड क्लास के, उनको संपर्क किया और इस मुद्दे के समर्थन में हमने उनसे कहा कि आप हमारा इस मुद्दे पर समर्थन करिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो उत्तर प्रदेश के 4 सांसदों ने हमारे इस मुद्दे के समर्थन में अपने लेटर दिए। मैं उन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे संगठन के इस मुद्दे के समर्थन में पत्र दिया। पहले हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने हमारे मुद्दे के समर्थन में अपना लेटर दिया है। ये लेटर 2 लेवल पर दिए गए हैं, एक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑनरेबल राजवीर दिलेर। दूसरे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजवीर दिलेर साहब, उन्होंने हमारे मुद्दे के समर्थन में लेटर दिया है। ये लेटर है। और अगला लेटर हमको ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर गिरीश चंद्र साहब ने ये हमको लेटर दिया है हमारे मुद्दे के समर्थन में। और अगला लेटर हमें ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर हाजी फजलुर रहमान साहब ने दिया। अभी नाम के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जिन बहुजनों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस बहुजनों के समस्त प्रतिनिधियों के रूप में ये माइनॉरिटी के भी हमारे सांसद हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हमारे सांसद हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के भी हमारे सांसद हैं। और एक आपको खासियत बताऊं, ये किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, अलग पार्टी से भी संबंध रखते हुए, क्योंकि ये हमारे समाज के विषय है, उन्होंने हमारे मुद्दे के समर्थन में ये पत्र हमें दिया है। इन पत्रों को, ये जो हमारे सांसद महोदय ने पत्र दिया है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने टाइम सीख किया था और लॉ मिनिस्टर को ईमेल के माध्यम से कि वो हमें समय दें, जिससे हम इन पत्रों को लेकर अपने डेलीगेशन के साथ उनको मिलें और अपनी बात कहें। लेकिन अभी हम लोगों को कोई टाइम फाइनल नहीं किया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आज उस पर फैसला लेगा कि हमको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, इन सांसदों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो कई विधायक हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी हमारे मुद्दे के समर्थन में हमको अपना लेटर दिया है। मैं अभी उनके भी नाम आपको बताना चाहता हूँ। पहला लेटर हमको दिया है माननीय विधायक अमर सिंह जी, विधानसभा कायमगंज फर्रुखाबाद, इन्होंने हमको दिया है हमारे मुद्दे के समर्थन में। दूसरे विधायक हैं माननीय प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, विधायक विधानसभा फरीदपुर बरेली, उन्होंने भी हमें हमारे मुद्दे के समर्थन में अपना लेटर दिया है। अगले विधायक हैं माननीय चेतराम जी, एडवोकेट चेतराम साहब, ये विधायक हैं उबाया से, उन्होंने भी हमारे इस मुद्दे के समर्थन में हमको पत्र दिया है। अगला पत्र हमको मिला है माननीय विधायक पूरन प्रकाश जी, ये विधायक हैं बलदेव मथुरा से, इन्होंने भी हमें हमारे मुद्दे के समर्थन में पत्र दिया है। अगले विधायक हैं माननीय कुशाग्र सागर साहब,
कुशाग्र सागर, ये विधायक बिसौली डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हैं। उन्होंने भी हमारे मुद्दे के समर्थन में अपना लेटर दिया है। अगले विधायक हैं माननीय राजकरण तवीर साहब, ये विधायक नरैनी से डिस्ट्रिक्ट बांदा से हैं। इन्होंने भी हमारे मुद्दे के समर्थन में ये हम लोगों को पत्र दिया है। अगले विधायक हैं माननीय डॉक्टर अजय कुमार साहब, आप विधायक हैं विधानसभा 12 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद प्रयागराज। उन्होंने भी हमें अपने मुद्दे के समर्थन में ये पत्र हमको दिया है। अगले विधायक हैं माननीय चंद्रपाल कुशवाहा, ये विधानसभा उत्तर प्रदेश, ये बबेरू डिस्ट्रिक्ट बांदा, विधानसभा बबेरू डिस्ट्रिक्ट बांदा। ये चंद्रपाल कुशवाहा साहब ने भी हमारे मुद्दे के समर्थन में हमको ये पत्र प्राप्त कराया है। अगले विधायक है माननीय रफीक अंसारी साहब, आप मेरठ शहर से हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा मेरठ शहर। इन्होंने भी हमें अपने मुद्दे के समर्थन में ये पत्र प्राप्त कराया है। और अगले विधायक हैं माननीय दिनेश खटीक साहब, ये विधायक हैं हस्तिनापुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट मेरठ से। उन्होंने भी ये हमें पत्र प्राप्त कराया है। यानी हमने उत्तर प्रदेश के डिफरेंट जिलों से, विधानसभा से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी हमने अपनी इस आवाज के बारे में, इस मुद्दे के बारे में जानकारी दिया। रियल सेंस में रिप्रेजेंटेशन हमारा कहां कहां होना चाहिए, ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों ने इस बात को महसूस नहीं किया या वो किस तरीके से लड़ रहे हैं, ये उनकी समझ है, तो हमने इस मुद्दे के बारे में उनको वार्ता किया और उनको बताया कि मुद्दा ये केवल संगठन का नहीं, समाज का मुद्दा है, बहुजनों का मुद्दा है, ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है। तो हम भी इस आवाज को उठा रहे हैं और इस आवाज को आप भी उठाएं। मैं ये हमारे सम्माननीय विधायक जनप्रतिनिधि जी और हमारे माननीय सांसद जनप्रतिनिधि जी को अपने संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने संगठन के इस मुद्दे की गंभीरता को समझा, यानी बहुजनों की इस राष्ट्रीय समस्या को समझा और बेबाकी से बिना किसी पार्टी का महसूस करते हुए, समाज का प्रतिनिधि महसूस करते हुए उन्होंने संगठन को ये पत्र प्राप्त कराया। साथियों, ये पत्र आज आपके बीच में मैंने डिस्क्लोज किया और संगठन आज इस पर ये निर्णय लेने जा रहा है, जो आपको बताया जाना जरूरी है कि अब फैसला संगठन ने किया है इन सभी पत्रों को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा संगठन की तरफ से भेज दिया जाएगा। आज संडे है, इससे ट्यूसडे को इसको इलाहाबाद से इनको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। आपने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से, गंभीरता से सुना। इस बात के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भारत।